आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल। मैं हूं अनिस फातिमा। पेश है खबरनामा। वजीर सेहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से उन पर अराजियात पर कब्जे के लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी भी अराजी पर कब्जा नहीं किया और न ही किसी बदउनवानी में शामिल हैं। श्रीनिवास गौर ने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की जानिब से कई मरतबा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनकी काबिनी वुज़रा को जेल में डाल देने की बात पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि क्या रियासत की तरक्की करना या रियासत के अवाम के घरों में खुशहाली लाने के लिए बड़े पैमाने पर स्कीमात को रूबे अमल लाना जुर्म है। उन्होंने बताया कि ई राजेंद्र के खिलाफ अराजियात पर कब्जा की तहकीकात का हुक्म वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किया जाने वाला ये इकदाम काबिल सताइश है। इसलिए है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हुकूमत और पार्टी में किसी भी किस्म की बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रुतबे का कायद हो। నిన్న భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలపైన, ఆయన తీరుపైన, అతని వ్యవహారం పైన మరి సమాజమే సిగ్గుపడేటట్లు ఆయన వ్యవహారం, మాటలు, తీరు, హోందాతనం లేకుండా ఒక జాతీయ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా మర్చిపోయి ఎవరు ఏ కాగితం ఇస్తే అది ఏది పడితే చదివి చరిత్ర గల నాయకులపైన నిందాపరులు చేయడం అనేది చాలా బాధాకరం. ఇలాంటి నాయకులు అని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ, అసలు ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరిపైన మాట్లాడుతున్నామో ఆయన చరిత్రను తెలుసుకోవాలి. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఆయన ఎక్కడున్నాడు, మేము ఎక్కడున్నామో ఒక్కసారి తెలుసుకోవాలి. ప్రజాప్రతినిధులే తెలంగాణ అనే పదాన్ని ఉచ్చరించడానికి అసెంబ్లీలో భయపడుతున్న రోజుల్లో కేసీఆర్ గారి వెంబడి మేము ఒక ఉద్యోగిగా ఉండి సంఘాన్ని స్థాపించి అనేక సంఘాలను స్థాపించడానికి కారకులమై మరి తెలంగాణ వస్తుందో రాదో కానీ వచ్చే వరకు ప్రాణం పోయినా సరే తెగించి కొట్టాలని చెప్పిన మేము, జైలులో కూడా పోయినటువంటి మేము ఇలా మా పైన మీరు మాట్లాడేదని అడుగుతా ఉన్నాను. ఆనాడు రాజీనామాలు చేయమంటే కూడా సగం మంది రాజీనామాలు చేసి సగం మంది ఎన్నుకోయినటువంటి మీరు మా పైన మాట్లాడేదని చెప్పి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఆనాడు మీరెక్కడా, మేమెక్కడా? అసలు నీ స్థానం ఏంది తెలంగాణలో? ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమం. నిన్న భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలపైన, ఆయన తీరుపైన रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि नागार्जुन सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में केसीआर और टीआरएस का मुकाबला दो कौमी जमातें बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान था, जिसमें अवाम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले कामों और अवाम की तरक्की के लिए रियासत में बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाने पर टीआरएस उम्मीदवार एन भगत को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया है। इन वज़रा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कल आने वाले 2 कॉरपोरेशन और 5 म्यूनिसिपैलिटी में भी टीआरएस भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। రెండోది నాగార్జున సాగర్ బై ఎలక్షన్. నాగార్జున సాగర్ మేము డే 1 నుంచి చెప్పినప్పటి నుంచి కూడా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ప్రభుత్వ పనితీరుకు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పరిపాలనకు అద్దం పడుతుందని చెప్పి ఆ రోజు ఏదైతే చెప్పినామో మరి స్పష్టంగా రిజల్ట్స్ కూడా ఈరోజు మీరు ఫస్ట్ రౌండ్ నుంచి మొదలుకుంటే ఇప్పటికే 13 రౌండ్లు కంప్లీట్ అయింది, ఇంకో 12 రౌండ్లు ఉన్నాయి. ఈరోజు ఈ దేశంలో ఏదైనా తీసుకోవాలంటే డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్ మోడల్ తీసుకోవాలంటే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో నడుస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్నే మోడల్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రెండోది నాగార్జున సాగర్ బై ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు
అక్కడ దివంగత నేత నోముల నరసింహయ్య గారు మరణించిన సందర్భంలో అక్కడ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో మేమందరం పోయినప్పుడు చాలా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు అక్కడ వాళ్ళ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ నుంచి మొదలుకుంటే వాళ్ళ ఎంపీలు కానీ మాజీ మంత్రులు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఇన్ఛార్జ్ కానీ ఎన్ని మాటలు మాట్లాడారు మీరందరూ చూశారు. ఓడిపోయే అభ్యర్థిని మేము పెట్టినామని చెప్పి ఇక రకరకాలుగా వాళ్ళ నోటికి వచ్చినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి అంశాలను కూడా మీరు చూశారు. నాగార్జున సాగర్ ప్రజలు స్పష్టమైనటువంటి తీర్పు ఈరోజు 7 మండలాలు 2 మున్సిపాలిటీల్లో కూడా మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి గెలుపు దిశగా మరి పార్టీ మా యొక్క నోముల భగత్ గెలుస్తున్నటువంటిది కూడా ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు బీజేపీ పార్టీ మరి బండి సంజయ్ గారు వాళ్ళ నాయకులు వాళ్ళ కేంద్ర మంత్రి గారు కూడా వచ్చి ప్రచారం చేశారు. ఆయన మాట్లాడితే ఆయన ఇష్టానుసారం నిన్న కూడా మీరు చూసినారు. దేనికి नोमुला भगत ने नागार्जुना सागर असेंबली जिमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा, पार्टी कायदीन और राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने इस हलक़े से उनकी कामयाबी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, टीआरएस और हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से मुमकिन हुई है। उन्होंने नागार्जुना सागर की आवाम को तयक़ुन दिया कि वो अपने वालिदैन नरसिम्हा के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम की खिदमत के लिए हमेशा अवाम के दरमियान मौजूद रहेंगे। तेलंगाना भवन में आग लगने का वाक़या पेश आया है। बताया जा रहा है कि नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी का जश्न मनाने के दौरान की गई आतिशबाजी के नतीजे में सजावट में अचानक आग लग गई, जिससे जश्न में मसरूफ अफराद ने फौरी तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इसी दौरान फायर फाइटर्स जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे और आग को काबू में कर लिया। नागार्जुना सागर के साथ हैदराबाद में कारकुनान टीआरएस के हामी नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार नोमुला भगत की फतह का जश्न मना रही है। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने तेलंगाना भवन में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी भी की थी। माहौलियात व जंगलात ने कोविड के वबा के तनाजुर में हैदराबाद के अलावा दीगर शहरों के तमाम बड़े पार्कों को बंद रखने का फैसला किया है। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। रोजाना रिकॉर्ड सतह पर मुस्बित केसेस दर्ज हो रहे हैं। इस पस मंजर में कोविड का असर एक बार फिर पार्क्स और तफरी मुकामात पर पड़ा है। हुकूमत ने रियासत में पार्क्स और चिड़ियाघर बंद रखने का फैसला किया है। वजीर जंगलात और माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि रियासत में चिड़ियाघर, पार्क्स और तफरी मुकामात को कोरोना के फैलाव के पेश नज़र बंद कर दिया जाएगा। वजीर ने कहा कि फैसला महकमे जंगलात ने मरकजी जंगलात की वजारत माहौलियात और सेंट्रल चिड़ियाघर अथॉरिटी की हिदायत के जवाब में लिया है। इसके एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद में केबीआर पार्क और नेहरू जूलॉजिकल पार्क्स बंद कर दिए गए हैं। वरंगल काकतिया चिड़ियाघर भी बंद कर दिया गया है। बीजेपी दुबक और जीएचएमसी इंतखाबात में कामयाबी के बाद खुद को टीआरएस का नैमुल बदल जमात तस्वुर करते हुए भाग दौड़ कर रही थी, लेकिन जनूबी हिंद में अवाम कभी भी बीजेपी की तायद नहीं की। नागार्जुन सागर में बीजेपी के उम्मीदवार को सिर्फ 463 वोट हासिल हुए, जिससे इस उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई। इस तरह तिरुपति में भी बीजेपी 3654 वोट हासिल किए, जिससे उसके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। दोनों तेलुगु रियासतों में बरसरे इख्तिदार जमातों के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल है। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी के ताउन से गांधी अस्पताल को 100 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम हुए हैं। किशन रेड्डी की सरपरस्ती में गांधी अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट को DRDO के हुक्काम ने सिलेंडर हवाले किए। जी किशन रेड्डी जब भी मौका मिलता है वो जरूर गांधी दवाखाने का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि गांधी अस्पताल में किशन रेड्डी के हल्के पार्लियामान में आता है। गांधी दवाखाने का कई बार किशन रेड्डी दौरा कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी चीफ मिनिस्टर दौरा नहीं कर सके, जिससे अवाम में बरहमी पाई जा रही है।
तेलंगाना में कोरोना की लहर है। एक हफ्ते से कोरोना के केसों में किसी किस्म की कमी नहीं हो सकी। 24 घंटों में 7,430 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जीएचएमसी हुदूद में यानी ग्रेटर हैदराबाद में 1546 केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना की लहर तेलंगाना के अजला को भी अपने लपेट में ले चुकी है। 24 घंटों में कोरोना से 56 अफराद की मौत हो चुकी है। मजमूई अमवात 66,023 को पहुंच चुकी है। 80,656 अफराद अभी भी जेर इलाज हैं। 24 घंटों में 5,567 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। महकमे लीगल एंड मेट्रोलॉजी के अहदेदारों ने शहर के मुकामात पर होलसेल मेडिकल शॉप्स पर बैक वक्त छापे मारे हैं। इस मौके पर अहदेदारों ने मास्क और सैनिटाइजर्स को कीमत से कहीं ज्यादा दामों पर फरोख्त करने पर जुर्माना आयद किया है। उन्होंने मुतनबा किया कि ऐसी दवाएं फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिनको हुकूमत ने एमआरपी से ज्यादा नरखों पर लाइसेंस नहीं दिया था। इसके अलावा अवाम की शिकायत है कि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें जो बगैर मास्क और समाजी फासले की पाबंदी ना करते हुए कोरोना के फैलाव का सबब बन रहे हैं। ఎంఆర్పీ రావా ఎంత అండి ఇది హౌ మచ్ असेंबली व काउंसिल के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट सलीम के अचानक इंतकाल पर स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, चेयरमैन काउंसिल गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी के अलावा रियासती वुज़रा वेमुला प्रशांत रेड्डी के ईश्वर निरंजन रेड्डी, जगदीश रेड्डी ने कहा है कि आज हम सलीम भाई जैसे एक अच्छे दोस्त से महरूम हो गए हैं। सलीम कोरोना से मुतासिर हुए थे। उनके अफराद खानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए उन्होंने ताज़ियत पेश की। जिले मेडचल दोंडीगल बोरमपेटा तालाब में करीब 1 टन मछलियां मुर्दा पाई गई हैं। फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के नुमाइंदों का ख्याल है कि तालाब में गंदा पानी, नकासी आब के पानी की मौजूदगी की वजह से मछलियों की मौत हो सकती है। रियासत में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद ENT रिसर्च फाउंडेशन 1 लाख मुफ्त मास्कों की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया है। मास्क लगाने, मुफ्त में पानी की बोतल या छाछ ले जाइए का नारा लगाते हुए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। हैदराबाद के मसरूफ तरीन महात्मा गांधी स्टेशन, किंग कोठी, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इस मौके पर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर GVS राव उनकी टीम के हमरा मास्क लगाने से कोरोना से मुहतात रहने के बारे में शऊर बेदार कर रहे हैं।
వాటర్ బాటిల్ సార్ సార్ ఇవ్వండి. కరోనా ఇది మానసికంగా మనం దౌర్బల్యాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆ మానసిక దౌర్బల్యం మన శరీర ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని దెబ్బతీస్తుంది. మరి ఈ కరోనాని ఎలా తప్పించాలి? మాస్క్ పెట్టుకోండి, తర్వాత మీ శక్తిని కరోనాకు చూపించండి, కరోనా గొలుసు తెంచండి. ఇలా చేయటం వల్ల కరోనా నుంచి మనం ఉధృతిని తగ్గించవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ డాక్టర్ రావు ఈఎన్టీ హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్ ఈఎన్టీ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఏం చేయాలనుకుందంటే మాస్క్ అవేర్నెస్ అందరికీ తెలియపరిచి, మాస్క్ పెట్టుకుంటే మీకు కరోనా రాదు, మాస్క్ పెట్టుకోవడం మీకు కరోనా రాదు, మీరు మాస్క్ పెట్టుకుంటే నాకు కరోనా రాదు. ఈ ఉద్దేశంతో ఇలా మాస్క్ ఇది ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టాం అనమాట. దాదాపు 1,00,000 మాస్కులు మేము తీసుకొని బయలుదేరాం. 1,00,000 మాస్కులతో పాటు మంచినీరు, పెరుగన్నం, పులిహార, తర్వాత బన్స్ కూడా తీసుకున్నాం. మా దగ్గర బన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. ఏంటంటే మాస్క్ పెట్టుకుంటేనే మంచినీళ్ళ బాటిల్ ఇస్తున్నాం. ఫస్ట్ మాస్కే ఇస్తున్నాం. మేము మాస్క్ ఇచ్చి మంచినీళ్ళు ఇస్తున్నాం. మంచినీళ్ళతో పాటు వాళ్ళ ఆకలి కొని ఉంటే ఆహార పదార్థాలు కూడా ఇస్తున్నాం అనమాట. పెరుగన్నం, పులిహార, తర్వాత బన్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట. ఇవి వాళ్ళల్లో దాదాపు మేము 1,00,000 మందికి మాస్కులు ఇస్తుంటే కనీసం 50,000 మంది మాస్క్ పెట్టుకొని ఈ కరోనాని వ్యాప్తి గొలుసుని తంపగలైతే దాన్ని ఈ కరోనా ఉధృతిని, కరోనా వ్యాప్తిని మనం తగ్గించగలుగుతాం. ईटेला राजेंद्र के सेहत के कलमदान को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपनी तहवील में रख चुके हैं। ईटेला राजेंद्र इस वक्त अराजियात स्कैम की तहकीकात का सामना कर रहे हैं। टीआरएस अब तेलंगाना तहरीक कारों पर नजर रखे हुए है। मुत्तहिदा वरंगल से टीआरएस के 2 अरकान असम्बली सुदर्शन रेड्डी, विनय भास्कर किसी एक को ईटेला राजेंद्र की जगह वजीर का ओहदा देने की तैयारियां चल रही हैं। सीएम ऑफिस से इन 2 अरकान असम्बली को 2-3 दिन में हैदराबाद आने के लिए तैयार रहने की हिदायत भी जारी हो चुकी है। वरंगल जिले से इस वक्त ई दयाकर राव वजीर पंचायत राज के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस तरह टीआरएस कायद मुत्तहिदा वरंगल से मजीद एक रुकन असम्बली को वजारत में मौका फराहम करने जा रही है। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने मुल्क में मौजूदा कोविड-19 वबाई सूरत हाल से निपटने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए गांधी ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो सूरत हाल पर साइंसदानों समेत इब्तिदाई इंतबाही अलामात को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी पार्टी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान को अद्वियात और तिब्बी सामान और ऑक्सीजन की मजीद गैर मुल्की इमदाद हासिल हुई है। अमेरिका से एक और परवाज गुज़िश्ता रात 1000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर्स और दीगर तिब्बी सामान लेकर हिंदुस्तान पहुंची है। 2 दिन के अरसे में ये तीसरी इमदाद है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने हिमायत पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। गुज़िश्ता रात हुकूमत उज़्बेकिस्तान की तरफ से भेजी गई 100 ऑक्सीजन और दीगर तिब्बी सामान भी कल रात हिंदुस्तान पहुंचा है। उज़्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी बिरादरी ने मजीद 51 ऑक्सीजन टैंकर्स का अतिया किया है। वजारत खारजा ने इसके लिए हुकूमत उज़्बेकिस्तान और वहां की हिंदुस्तानी बिरादरी का भी शुक्रिया अदा किया। कल जर्मनी से 120 वेंटिलेटर हिंदुस्तान पहुंचे हैं। ज़राए ने बताया कि जर्मनी अगले हफ्ते एक मोबाइल ऑक्सीजन 13 प्रोडक्शन और फीलिंग प्लांट भेजेगा। जर्मन तकनीकी अमला तनसीब और तरबियत के लिए हिंदुस्तान आया है। ज़राए का कहना है कि रेमडेसिविर और मोनोक्लोनल की खेप भी जल्द हिंदुस्तान पहुंचेगी। जर्मन एजेंसी हिंदुस्तानी तकनीकी टीम के साथ वायरस के तरतीब पर एक वेबिनार तरतीब देगी। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज।